Assalamualaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. So this is your lesson of computer science, and today we are going to learn how we can design a form. So simply just have to watch this video lesson carefully, and then you have to do the practice in your computer. So today we are going to simply design a registration form. Is it clear? So let's start it. Don't waste any time. And first of all, can anyone tell me which software I should use if I want to use, or if I want to design registration form on, and if I want to display it on web page? Alishba, can you tell me? Right, I have to draw here, or I have to use Notepad++. Is it clear? Okay, so simply आपने नोटपैड ओपन कर लिया है. You have to take a new page. And so first of all, can anyone tell me what is the basic structure of a Notepad++? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है किसी भी फॉर्म को डिज़ाइन करने का, या नोटपैड में या HTML में काम करने का? व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर? राइट, एग्जैक्टली. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना क्या है, आपका जो फर्स्ट टैग है दैट इज़ HTML. This one is your opening tag or closing tag. Can anyone tell me कि HTML आपके पास सिंगल टैग है या पेयर्ड टैग है? Farhan, can you tell me? Right, so HTML is basically your paired tag. So pair tag, that means you have to write this tag 2 times. Is it clear? Okay, so first of all, before doing anything, let's save the file. हम अपनी फाइल को सेव करते हैं, and then we will continue. So simply you just have to press Ctrl S from your keyboard. I'm going to save my file on desktop with the name of form designing. Is it clear, or I have to add something else? Right, exactly. Here I have to add the extension. Is it clear? मैंने यहाँ पर extension इसकी लाजमी ऐड करनी है, otherwise my form will not appear on your web page. So simply just type .html and then click on your button of save. So now as you can see कि अब आपको ये कलर्स में अपीयर हो रहा है कि जिससे हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया है. ओके, आफ्टर HTML अब हमने जितना भी काम करना है वो हमने इस HTML टैग के अंदर काम करना है, इससे बाहर जाके आपने कोई भी काम नहीं करना. इज इट क्लियर? सो आफ्टर HTML, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द नेक्स्ट टैग वी हैव टू यूज़? व्हाट इज़ द सेकंड टैग? दिस इज बेसिकली द फर्स्ट वन. सो नाउ व्हाट इज़ द सेकंड टैग? Right, here I have to use the tag of head open, and similarly head को मैंने क्या किया, close. Is it clear? Okay, और head के अंदर आपने अपना जो टाइटल देना है, तो उसके लिए आप ये टॉपिक देना है अपने वेब पेज का, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? हरम, कैन यू टेल मी? Right, you have to use here the keyword with the name title. TITLE, title, the opening tag, and this one is the closing tag. And there you have to write here in center your title of your web page. Like if you want to draw a registration page, then you have to write here registration form, whatever you want to write. If you are working on a website that is relating to about different books, then you can make title according to that your topic. If you are working on your web page that is related to games, so you can write here games. So simply I'm just going to write here registration page. Is it clear? Okay, so this is the basic
registration page. So first of all, let's see the page on the web page. So simply you have to click on this option of view. व्यू पर क्लिक करने के बाद आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, एज, वट एवर यू आर यूजिंग, यू हैव टू रन दिस फाइल ऑन दैट web browser. So right now I'm using Firefox, so I will click on this option. Okay, so ओके यहाँ पर फ़िलहाल मेरा जो फॉर्म का नेम है वो अपीयर नहीं हो रहा. सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आपने अभी टाइटल तो दिया है बट आपने अपना बॉडी के टैग को डिफाइन नहीं किया. सो हेयर आई विल सिंपली राइट बॉडी, द ओपनिंग टैग ऑफ बॉडी, एंड हेयर द क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी. इज इट क्लियर? सेव योर फाइल, refresh your web page, and now as you can see there is a title with the name registration form. Is it clear? Registration page. So now after that, first of all as you can see कि मेरे पास ये जो पेज इस वक्त आपको नज़र आ रहा है वो ब्लैंक है, वाइट कलर में है. So क्या मैं पेज का कलर चेंज कर सकते हैं हम? Is there any possibility that we can change the color of the page or not? Right, we can change the color of a page. So let's see, हम यहाँ पर पेज का कलर चेंज करेंगे. So for that purpose अब हम पेज का कलर चेंज करें. बेसिकली पेज का कलर मतलब ये जो कंप्लीट एरिया है आपको नज़र आ रहा है इसका कलर. सो हाउ इसका कलर हमने चेंज करने के लिए जो कोड है वो हम किस जगह पे टाइप करेंगे? HTML में, हेड में, बॉडी में, टाइटल में, किस जगह पे? Right, we have to type in the body or BG, that is your background color. BG is equal to double quotation, and for example I will do this as light sky blue. You can choose any color according to your own. So simply just save your file, रिफ्रेश योर पेज. सो एज यू कैन सी कि आपका जो पेज का कलर है वो स्काई ब्लू में चेंज हो चुका है. इज इट क्लियर? आई होप यू डोंट हैव एनी इशू इन दिस. ओके, आफ्टर दैट अब बेसिकली हम एक तरह से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं. सो उसके लिए आप जो टैग यूज़ करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इसको सेपरेट करने के लिए एक टैग यूज़ कर लें विद द नेम BR. कैन एनीवन टेल मी कि BR का जो टैग है वो हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? राइट, BR टैग इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर ब्रेक. अगर आप अपनी लाइन को ब्रेक करना चाह रहे हैं या पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके लिए BR का टैग यूज़ कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट सिंपली यू हैव टू यूज़ द टैग ऑफ फॉर्म. दिस इज़ द टैग ऑफ फॉर्म. इज़ इट क्लियर? तो फॉर्म का टैग हमने क्यों यूज़ किया? कैन एनीवन टेल मी? वेरी राइट, फॉर्म का टैग इसलिए यूज़ किया बिकॉज हम एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं. ठीक है, कुछ टैग्स इस तरह से जो कि आपके रियल वर्ड में जो वर्ड्स हैं उससे मिलते जुलते हैं. जैसे कि कलर का टैग है, तो कलर का टैग आप सबको पता हम क्यों यूज़ करें कि कलर असाइन करने के लिए अपने वेब पेज पर. सो फॉर्म का टैग मैंने ओपन किया. सो शुड आई क्लोज दिस टैग और नॉट? Fatma, can you tell me, should I close this tag or not? Right, I have to close this tag also. आपने इसी टैग को क्या कर दिया? Close. Is it clear? अब हमने फॉर्म से रिलेटेड जितना भी काम करना है वो बेसिकली हमने इसी टैग के अंदर रह के काम करना है. आपने इस टैग से बाहर नहीं जाना. ये नहीं है कि आप फॉर्म के बाद डबल क्लिक करें, एंटर प्रेस करें, यहाँ पर काम कर लें, या HTML के बाहर इधर इस जगह पर आके कुछ ना कुछ काम कर लें. नो, otherwise there will be some kind of error on your screen and your web page will not work. So after फॉर्म के बाद हम देखेंगे, आपने अक्सर फॉर्म में ये ऑप्शंस पढ़ी होंगी कि जब आप किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का
जब आप किसी स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करें तो उसमें समटाइम ऑप्शंस होती हैं फर्स्ट नेम, और आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना होता है, देन लास्ट नेम, एंड देन यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। उसके आगे कॉलम बना होता है छोटा सा, एक ब्लैंक टाइप। फिर उसके बाद ऑप्शन होती है व्हाट इज़ योर जेंडर, देन यू हैव टू, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, मेल, फीमेल, अदर। तो उसमें आप जो भी जेंडर है आप उसको जस्ट सिलेक्ट करते हैं या क्लिक करते हैं और वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली कंट्री की ऑप्शन होती है, और कंट्री में अगर आप क्लिक करें तो आपको जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट एक प्रोवाइड की होती है, और आप सिंपली उसमें से अपनी कंट्री चूज़ कर लेते हैं। सो हेयर व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन क्रिएट करेंगे फर्स्ट नेम। इज़ इट क्लियर? फर्स्ट नेम, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेबल। लेबल का एक टैग है लेबल। आई विल राइट हेयर फर्स्ट नेम, और लेबल को आपने क्या कर दिया, क्लॉज। इज इट क्लियर? लेबल, फर्स्ट नेम और लेबल को आपने क्लोज कर दिया। सो नाउ लेट्स सेव योर फाइल, प्रेस सिंपली कंट्रोल एस। आप एक भी वर्ड टाइप करें या एक सिंपली डॉट भी अगर टाइप करें, अपनी फाइल को सेव करें और अपने वेब पेज को जाके सिंपली रिफ्रेश करें। सो एज यू कैन सी कि अब यहाँ पर आपकी ऑप्शन आ गई है फर्स्ट नेम की। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें आप अपने फर्स्ट नेम को या अपना फर्स्ट नेम टाइप कर सकें। सो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी विल डू कि यूज़र अब उसमें टाइप कर सके, और टाइप करने के लिए हम वहाँ पर कौन सी ऑप्शन देंगे यूज़र को, राइट। यूज़र बेसिकली इनपुट एंटर कर रहा होगा, अपना डाटा खुद से एंटर कर रहा होगा, सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट। आपने बस उसकी टाइप बतानी है, इनपुट किस किस्म की है, क्या यूज़र कोई नेम खुद से टाइप कर रहा है, टेक्स्ट एंटर कर रहा है, या वो किसी वैल्यू पर चेक मार्क्स लगा रहा है, या किसी को कोई रिजल्ट दे रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट द यूज़र इज़ एंटरिंग। इनपुट टाइप स्पेस इज इक्वल टू, आपने बताना उसकी टाइप किया। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल हम ले रहे हैं टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपने नेम बताना है, नेम क्या नेम होगा आपका। सो सिंपली जस्ट यू कैन से दिस टू फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आप जो बॉक्स चाह रहे हैं उस बॉक्स का साइज़ क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज करके, आई विल क्लोज इट, अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि उस पर क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अब देखें आपके पास यहाँ पर एक सामने बॉक्स अपीयर हो गया जहाँ पर यूज़र अपना नेम टाइप कर गया। फॉर एग्जांपल इफ़ आई विल राइट माय नेम, इज़ इट क्लियर। सो इस तरह से यूज़र अपना नेम खुद से टाइप करेगा। आप इसकी विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक वी विल जस्ट सेट द विड्थ दैट इज़ योर साइज़। साइज़ कितना होना चाहिए इस बॉक्स का, यू कैन से इट टू एज लाइक 15। इज़ इट क्लियर। प्रेस कंट्रोल एस, और आपने क्या करना है, अपनी लाइन को कर देना है ब्रेक। ब्रेक दैट मीन्स कि अब जो हम न्यू काम करेंगे या न्यू लाइन में जो हम काम कर रहे हैं वो आपको न्यू लाइन में ही अपीयर होना चाहिए। अगर आप ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो जो भी आप नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट सेंटेंस में टाइप करें वो ऑटोमेटिकली आपको उसी लाइन में कंटिन्यू होकर मिलेगा। सो उसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं दैट इज़ विद द नेम ऑफ BR। सिंपली टाइप BR, save your file, refresh your web page. So now as you can see कि यहाँ पर आपको अपीयर हो चुका है। Is it clear? So similarly हम इस तरह से 2 से 3 इनपुट ऐड करेंगे। What we will do, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ so that कि हमारा टाइम सेव हो। Ctrl+C, और इसको मैंने कर दिया Ctrl+V, Ctrl+V। फर्स्ट नेम की जगह अब मैं टाइप कर दूँगी यहाँ पर फादर नेम, or you can say your last name, whatever you want to type. Father's name, type यहाँ पर आप इसको चेंज कर देंगे, it should be your father name. Similarly जो थर्ड है स्टेप आपका, उसमें आप टाइप कर सकते हैं अपना लास्ट नेम, और you can type your mother name, और इसका जो नेम मैं चेंज कर देती हूँ, इट शुड बी योर लास्ट नेम। प्रेस Ctrl+S एंड रिफ्रेश योर वेब पेज। तो अब देखें आपके पास आपको
3 इनपुट नज़र आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट नेम, फादर नेम एंड लास्ट नेम. इज इट क्लियर? और इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? ओके, सो फर्स्ट नेम, फादर नेम एंड लास्ट नेम ये टाइप करने के बाद अब यूज़र सिंपली इसमें अपना नेम, अपनी वैल्यू टाइप कर सकेगा. उसके बाद जो हम ट्राई करेंगे दैट इज़ योर, कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी इंस्टीट्यूट है वो किस किस्म के प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कर रहा है. आपने अक्सर वो ऑप्शंस देखी होंगी कि आपको एक कैटेगरी प्रोवाइड की जाती है, लाइक आप किस कंट्री में रहते हैं, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं एंड देयर इज़ अ ड्रॉप डाउन लिस्ट कि आप पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका, वट एवर इन विच कंट्री यू आर लिविंग राइट नाउ. सो यहाँ पर हम एक लेबल यूज़ करेंगे विद द नेम जो कि मेरे पास होगा कोर्स के नेम से. ठीक है, सो सिंपली लेबल और फिलहाल अब हम डिज़ाइन करेंगे कोर्स. इज इट क्लियर? कोर्स, और लेबल को मैंने कर दिया क्लॉज. ठीक है, उसके बाद हमने अपने कोर्स डिज़ाइन करने हैं. आपके मेरे पास जो मेरी यूनिवर्सिटी है या जो भी आपकी डिपार्टमेंट है वो कौन से कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल उसके लिए हम यूज़ करेंगे द ऑप्शन ऑफ सिलेक्ट. हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट. बेसिकली आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, उसमें खुद से टाइप नहीं करना. तो क्या यहाँ पर आप टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ करेंगे? इज़ देयर शुड बी एनी ऑप्शन ऑफ टेक्स्ट और नॉट? अबूजर, कैन यू टेल मी? राइट, आपने सिंपली सिलेक्ट करना है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे कीवर्ड सिलेक्ट. नेक्स्ट आपने ऑप्शंस देनी है. कौन कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल आई विल से ऑप्शन वैल्यू शुड बी, फॉर एग्जांपल आई से BSc, राइट इन कैपिटल लेटर्स. और इसको आप कर दें क्लॉज. यहाँ पर आप दें BSc इन कैपिटल और इस ऑप्शन को आप कर देंगे क्लॉज. सेव योर फाइल एंड देन रिफ्रेश योर वेब पेज. तो अब देखें एक आपके पास ऑप्शन आ चुकी है BSc. तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है दैट इज़ योर कोर्स, जो कि आपने चूज़ किया है BSc. हम यहाँ पर 2-4 वैल्यूज़ और ऐड करते हैं. मैं इसी को कर लेती हूँ कॉपी बाय प्रेसिंग Ctrl+C. ओके, सो BSc आई विल मेक इट एज मास्टर्स, MSc, MPhil, PhD, और यू कैन ऑल्सो से लाइक MBA. और इसी तरह से आपने इसके नेम भी चेंज करने हैं. MSc, मेक इट एज MPhil. आफ्टर दैट वी हैव राइट PhD, then we have write MBA. Is it clear? और सिंपली एट द एंड आपने अपने ये जो सिलेक्ट की ऑप्शन है उसको क्लोज कर देना है. SELECT, select. Press Ctrl+S, refresh your web page. सो नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट अपीयर हो रही है कि विच प्रोग्राम यू वांट टू स्टडी, BSc, MSc, MPhil, PhD, MBA. So simply you can select your program. Is it clear? So in this way we can design the basic structure of a web page. I hope there is not any kind of difficulty. Is it clear, class? Okay.